समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? हाँ। It's clear to you? I'm repeating once again. TF0 is nothing but a for timer 0 and TF1 is nothing but a timer 1. TF0 and TF1 both are nothing but a timer 0 and timer 1. Together is called, together is called timer 1 registers. Together, called TFX registers. Together is called TFX registers. Is it clear? It's clear to you? ये टाइमर का हायर और लोअर वाला मतलब है सर ना 8 Together is called TFX. Together is called TFX. Together is called TFX. So what are the functions of TFX if I'm talking about? So TFX is nothing but a, depend upon the TFX is basically set, or TF0 or TF1 basically set at the timer when timer will be overflow. Means if timer 0 is overflow, then TF0 will be set. If timer 1 will be overflow, then TF1 will be set. So TF0 and TF1 both will be set or reset. Will be set at the time when the timer will be overflow. When the timer will be overflow, means if timer 0 is overflow, then TF0 will be set. If timer 1 will be overflow, then TF1 will be set. So that is the functions of TF0 and TF1. Next it is TRX. Next it is TRX. So TRX is nothing but a TR0 and TR1. TR0 and TR1 together is called TRX. So, yeah, first write down the TFX. First write down the TFX. Whatever I written in the copy, you just write down TFX. TFX heading करो TFX. अभी लिखो, timer X, timer X, timer X run control bit. Timer X run control bit. When timer X will be overflow, when timer X will be overflow,
when timer X will be overflow, corresponding timer, when timer X will be overflow, corresponding timer bit will be set or reset, will be set or reset, will be set or reset. Next heading karo TRX. Sir, what are the function of gate? Yesterday I discussed in TMOD. Gate is not set by the us, gate is set by the hardware, and basically gate is set by the TRX or TR0 or TR1. Means TR0 is for timer 0 and TR1 is for timer 1. So basically this bit is set of gate pin of timer 0. This pin is set the gate pin of timer 1. So write down the TRX. Full form timer run control bit. Timer run control bit. After set this bit, corresponding timer will be automatically on for counting the clock pulses. After set this bit, corresponding timer will be automatically on for counting the clock pulses. After set this bit, corresponding timer will be automatically on for counting the clock pulses. Means this TR0 will be set the gate pin of gate pin of timer 0 and TR1 will be set the gate pin of timer 1. Sir, if I shown to you the TMOD registers, then you can able to understood. You just see this gate pin is set by the TR0, this gate pin is set by the TR1. That is a function of TR0 and TR1. So I am mentioning together is TRX. Next, sir, IEX. IEX means IE1 and IE0. Together is IEX. Together is IEX. Together is IEX. So write down IEX. External interrupt X. External interrupt X. Edge flag. External interrupt X. External interrupt X. Edge flag. This bit will be set when corresponding interrupt. This bit will be set when corresponding interrupt enter into the microcontroller. This bit will be set when corresponding interrupt enter into the microcontroller. This bit will be set when corresponding microcontroller when corresponding external interrupt enter into the microcontroller. Next, ITX. আমি ক্লাসে আছি, পরে ফোন করব 5টার পর। কিছু করার নেই। So it is nothing but a ITX. ITX nothing but a it's a bit, it's called a interrupt X tie flag. IT0 is for external interrupt 0 and IT1 is for external interrupt 1. IT0 is external interrupt, IT0 is for external interrupt 0 and IT1 is for external interrupt 1. For external interrupt 1.
just see IT0 and IT1. What are the functions of IT0 and IT1? IT0 basically is nothing but stand for IT0 is basically stand for ITX. In ITX, it is a two part. One is IT0 and another is the IT1. IT0, IT1. IT0 is for external interrupt 0, and it's for external interrupt 1, and it's for external interrupt 1. Is it clear? ITX is nothing but a ITX is nothing, IT0 is nothing but external interrupt 0, and ITX is nothing, IT1 is nothing but external interrupt 1. You know, this bit will be, if this bit is equal to 1, then say this type of clock pulse enter into the, you know, in external interrupt pin. This type of pulse will be coming. So IT0 is equal to 1 means, you know, interrupt will be generated at the falling edge. Interrupt will be generated at falling edge. Interrupt will be generated at falling edge. And if IT0 is equal to, you know, 0, then interrupt will be generated at low level. Interrupt will be generated at low level. So it will be set, then it is a falling edge, it's a clear, then it will be low level. You know, if it will be set, then it's called, you know, falling edge. It's called falling edge. And if it is a low level, means it should be, you know, it will be nothing but a low level. So depend upon the set or clear, it will be either in falling edge, either it will be in falling edge, or it will be low level. So, you know, whenever we can see, you just again see that IT0 is basically for external interrupt 0. If IT0 is equal to 0, 1, then it will be, interrupt will be generated at falling edge. Means clock will be coming, but when interrupt will be generated, that will be generated at the falling edge. That will be generated at the falling edge. And you know, and it will be generated at low level when it will be 0, when IT0 is equal to 0. Is it clear to everyone? हेलो सर IT0 हो जाएगा उस समय, मतलब ये लो लेवल ईज मतलब तुम जो है। कैसे आ गया? तुम तो था नहीं। नहीं सर, मतलब अभी अभी आया सर। अभी अभी आने से कैसे समझ में आएगा? बोलो। हाँ, तो वही मतलब लो लेवल ईज से मतलब स्टार्ट होगा ना सर? ना देखो, कोई भी टाइप का क्लॉक आ सकता है, कोई भी पल्स आ सकता है, तो इंटरप्ट कब जनरेट करेगा? इस क्लॉक के अंदर कब पता चलेगा जो ये इंटरप्ट आया है? तो इंटरप्ट आ सकता है इधर जब ऊपर से नीचे आएगा उस टाइम में कोई आ सकता है, और जब ग्राउंड होगा तब आएगा। तो दोनों टाइप में आ सकता है। दोनों टाइप कब होगा ना? जब IT ऊपर डिपेंड करेगा। IT0 इज इक्वल टू 0 होगा तो लो लेवल में इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। IT0 इज इक्वल टू 1 होगा तो ये फॉलिंग एज में इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा, फॉलिंग एज में। सिमिलरली फॉर IT1 फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। बोलो। वही सर, बस समझ गया। फिर से बोल रहा हूँ, हाँ सर। IT0 if 0, it's 0 or 1. If it is a 0, इंटरप्ट तो दो पिन है ना, एक INT0 INT1। यस सर। But interrupt will be generate when? Interrupt will be generate when, you know, either falling edge or low level. Falling edge means if interrupt will be generated if IT0 is equal to 1. तुम इसको 1 कर दोगे तो कभी भी interrupt will be generate at the time of falling edge. Falling edge means जब high से low होगा तब। और IT0 is equal to जब 0 हो जाएगा तब external interrupt 0 will be generated at the low level. जब ground होगा तब उसको इंटरप्ट जनरेट करेगा। इधर इंटरप्ट जनरेट होगा, इधर भी इंटरप्ट जनरेट होगा, इधर भी इंटरप्ट जनरेट होगा, मतलब लो लेवल में इंटरप्ट जनरेट होगा। राइट? यस सर।
देखो IT you know TRX is a run control bit and TF0 is a TFX is a flag. You know, it will be set or reset depend upon the corresponding, you know, which whatever the, you know, in timer will be overflow, then it will be set. We will be coming into the program, so you will be able to understand how it will be work. So means, just let me give an example. Sir, yesterday I told to you there is a 16-bit timer mode. 16-bit timer mode. It can count 0000 to FFFF. Am I right? Yes, sir. So after FFFF, it will be 0000. In that particular time interval, TF flag will be set. This time interval, TF flag will be set. Set means it will be 1. Set means it will be 1. So I am repeat once again. You know, in 16-bit timer mode, 0000 to FFFF. After FFFF, it becomes 00. In that particular time interval, you know, it will be TF flag will be set. Next, yesterday I told to you that is auto reload mode. Yes, Can sir. you understood the auto reload mode? नहीं सर. नहीं सर तो बोला नहीं था सर. नहीं सर, आप बोले थे कि बताएंगे फिर से, मतलब वो शुरुआत में पूछे थे. सर आप बोले थे कि मतलब बताएंगे उसको दोनों फिर से. शुरुआत में तो पूछे थे, तो किसका क्या क्वेरीज है. तो चलो देखते हैं ये ऑटो रिलोड मोड का फंक्शंस क्या है एंड व्हाई इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट. मान के चलो हम लोग अभी कितना जन है, 26 पर्सन है, तो 26 जन के अंदर हम लोग लुका छुपी गेम खेल रहे हैं. यस सर. हर एक के लिए 5-5 करके गिनती करना है. तो टोटल कितना गिनती करना है? 130. यस सर. तो हमको बोला 130 गिनती करने के लिए. तो मैंने क्या किया, हमको एक गिनती करना मतलब क्या होता है? You know, it is nothing but a delay. You just, someone is given to delay, you just wait that particular time. After that, you can searching the any other persons, right? Yes sir. तो ये डिले का क्या फंक्शंस है? ये डिले का क्या फंक्शंस है? Say you are counting the 130 0 1 2 3 4 5 6 करके ऐसा करके 130 गिनती कर सकते हो. मैंने क्या किया, मैंने पहले सोचा जो कैसे काउंट करे जिसमें छोटा हो. मैंने क्या किया, 130 को शुरू किया मैंने 100 से. 100, 101, 102, 130. So if I am starting from 100, so delay will be reduced or not? हाँ, कम हो जाएगा. Delay will be reduced. Similarly, in 16-bit timer mode, if you want to reduce the delay, how it will be possible? You will be given, like, you know, ABCD is the initial value. You will be given ABCD as the initial value. So it will be counting and counting and counting up to FFFF. Yes, after FFFF, it becomes 0000H. Yes, in sir. that particular time interval, TF flag will be set. Okay? Yes, sir. I am given initial value as a ABCD. So if anyone is given the initial value is 0000 and it is counting FFFF, and I am given a ABCD and it will be counting up to FFFF, which, you know, which delay will be less? ABCD जो जहाँ से काउंटिंग हो रहा है सर. ABCD to 0000. So, you know, reduce the delay. We are given the higher value at an initial level. Am I right or not? Yes, sir. To reduce the delay. डिले छोटा करना है तो तुमको हायर वैल्यू देना है एट इनिशियल लेवल. यस सर. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. कैसे रिक्वायरमेंट होगा नहीं होगा वो हम प्रोग्राम कराएंगे तो तुमको पता चलेगा. मगर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है जिसी के आधार पे हम बोल सकते हैं इसको ऐसे होगा. इज इट क्लियर? हाँ सर. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, एकदम. नेक्स्ट, तुम अभी सोचे हो जो सर तो शुरू किया है 100 से, मगर बाकी जो 25% है हमारा फ्रेंड जो है
वो ना क्या कर रहा है, those people are counting from 0000, those people are counting from 0000। तो तुमने सोचा जो सर हम नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ बैठ जाएंगे, किधर से काउंटिंग करना है हम बोलेंगे। तो तुम क्या किया, तुम जब हमारे बाद कोई दूसरे का बारी आया है, तुम उसको बोल दिया सर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 100, सर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 100। तो वो किधर से स्टार्ट करेगा, 100 से स्टार्ट करेगा। 100 से स्टार्ट करेगा। तो ये जो मोड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रिलोड मोड। मतलब ऑटो रिलोड मोड कितना बिट का है, 100 दिया। ऑटो रिलोड मोड कितना बिट का है, 13 बिट, 16 बिट, कितना बिट का, 16 बिट। हट ऑटो रिलोड सर कितना था यार, कल बोला था मैंने, एक था 13। ऑटो रिलोड मोड कौन सा मोड है सर 8 बिट। 8 bit, exactly. Auto reload mode is a 8 bit. It is a mode 2. It's a auto reload mode. So mode 2 is nothing but a auto reload mode. कैसे काम करेगा सर? Sir, it will be count from 00 to FF. फिर हम बोल रहा हूँ तुमको डिले छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आगे से काउंटिंग करना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू को तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा। यस सर। से हम 00 का AB किया, so it will be count from AB to FF। यस सर। so after FF क्या होना चाहिए था, 00 होना चाहिए जैसे दूसरा मोड में होता है, मगर होगा नहीं, जो मैंने इनिशियल वैल्यू दिया था उसी को फिर से लोड हो जाएगा इसमें, AB को फिर से लोड हो जाएगा एंड इज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड TF फ्लैग विल बी सेट, TF फ्लैग विल बी सेट। ये जो डेटा है ये डेटा लोड रहता है THX में, THX से ऑटोमेटिकली डेटा TLX के अंदर आ जाता है, THX से डेटा ऑटोमेटिकली TLX में आ जाता है। THX मतलब TH0 और TH1, TLX मतलब TL0 और TL1। तो इससे क्या होगा सर, TLX से क्या होगा, काउंटिंग शुरू करेगा, इट विल बी काउंट AB up to FF। when FF it's over, again the value of THX again coming and loaded into over here and it will be stored AB। in that particular time interval TF flag will be set। it's clear or not? यस सर। मतलब ये इनिशियल वैल्यू तुमको बार बार स्टोर करने का जरूरत नहीं है, एक बार स्टोर करने से ही हो जाएगा, मगर बाकी मोड में TF फ्लैग इनिशियल वैल्यू स्टोर करना जरूरी है। क्लियर? यस सर। मतलब ऑटो रिलोड में जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने से रिलोड नहीं पड़ेगा। ऑटो रिलोड मोड है मोड 2 में एंड यू नो 13 बिट मोड है मोड 1 में and mode 2 is nothing but a 16 bit timer mode। okay, यस सर। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रोग्राम देखते हैं। देखो ये है मोड 0 मींस 13 बिट टाइमर मोड, मैंने पिछला दिन बोला था। here 8 bit for THX and a 5 bit for TLX। here 8 bit for THX and 5 bit for TLX। here 8 bit for THX and 5 bit for TLX। so क्या होगा सर, it should be up to FF1F। FF1F के बाद क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में TF फ्लैग विल बी सेट। क्लियर? यस सर। ये सब टाइमर ऑपरेशन है, इसलिए C/T = 0 इंटरनल क्लॉक पल्स काउंट कर रहा है, उसमें तुमको TR बिट देना पड़ रहा है तब काउंटिंग हो रहा है। नेक्स्ट you know again it is a mode 1, so mode 1 means it can count 16 bit, so 0000 to FFFF, after FFFF it becomes 00, in that particular time interval TF flag will be set। just see the program,
From here it is the program you written. Just read carefully the questions. First read the carefully the questions. Are you read the program? Yes, sir. क्या बोला सर? Square wave with a 50% due to cycle. What does it mean? Square wave with 50% due to cycle. ये सर मतलब 50% के लिए ऑन रहना चाहिए सर मतलब है T on is equal to T off होगा. यस सर. This is a T on. Just see my copy. It is a T off. It's a T on. It's a T off. Okay. T is equal to T on plus T off. यस सर. T is equal to T on plus टी ऑफ. T off. Is it clear? एकदम सर. So ये हमको जनरेट करना पड़ेगा. कौन सा पिन में करना पड़ेगा? P1.5 में. P1.5 में. So मैंने क्या करूंगा? P1.5 को पहले जीरो राइट. उसके बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम जीरो है 1 है कुछ भी है. उसके बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम इसको हम 1 करेंगे. अगेन इसके सर्टेन टाइम के बाद फिर से इसको 0 करेंगे. फिर से इसको 0 रखेंगे कुछ देर तक. उसके बाद फिर 1 करेंगे. ऐसा चलता रहेगा. अब इसके बारे में हो जाएगा. ये कुछ देर जो है यही है डिले. राइट. ये डिले ये भी डिले. दोनों डिले शुड बी इक्वल. ये डिले एंड ये डिले शुड बी इक्वल. राइट. ये डिले एंड ये डिले शुड बी इक्वल होना चाहिए. तब जगह स्क्वायर वेव होगा. ये डिले अभी जनरेट करेंगे यूजिंग द टाइमर. माय क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? पहले बताओ. दोनों का लेवल मतलब सर बराबर होना चाहिए. हाँ इसी के लिए तो स्क्वायर वेव होगा ना. तब जगह स्क्वायर वेव होगा ना. तब जगह 50% ड्यूटी साइकिल होगा ना. यस सर. तो P1.5 में मिलना चाहिए. यू नो रेक्टेंगुलर सर एक ही होता है दोनों. स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों एक ही होता है ना. ये स्क्वायर वेव रेक्टेंगुलर वेव क्या है? नहीं, दोनों का लेवल तो जैसे कि अगर मानेंगे रेक्टेंगुलर तो उसमें भी तो लेवल सेम हो सकता है. लेवल सेम हो सकते मतलब लेवल सर जैसे बोल रहे हैं ना कि स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर. ट्रायंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर में तुम क्या करना चाहते हो? दोनों का लेवल सेम रहेगा सर. ये स्क्वायर वेव के जैसा है. वही तो बोल रहा है. इधर स्क्वायर वेव मतलब ये T on इज इक्वल टू T ऑफ होना पड़ेगा. मतलब इन दोनों का तुमको सेम डिले देना पड़ेगा. एंड इस डिले विल बी गिवन बाय द यू नो your whatever you have you know the whatever you have the timer 0 or timer 1 you should be generate. Yes sir. Clear? Yes sir.
तो कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? उसमें सबसे पहले सर उसमें इनिशिएट करने के लिए बोल रहा है। पहले देखो कोई टाइमर बोला है, टाइमर 0 बोला है, हाँ सर। कोई मोड बोला है? कोई मोड तो नहीं बोला सर वैसे। 16 बिट टाइमर जो बोल रहा है वो लेने के लिए बोल रहा है। मोड 1 कोई मोड 1 उधर बोला है? ये तो इधर देख रहे हो, इधर क्वेश्चन में बोला, नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला है। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो तुम कुछ भी मोड ले सकते थे, तो इधर मोड 1 लिया, तो मोड 1 क्यों लिया वो तो बात की बात है, हम देखेंगे। मोड 1 टाइमर 0 को लेना है, मोड 1 कैसे क्या वैल्यू होगा। पहले तुम सोचो, जो टीमोड के बारे में मैंने क्या बोला था, टीमोड के बारे में हमने क्या बोला था, टीमोड ओके। टीमोड के बारे में क्या बोला? टीमोड के बारे में यही बोला, पहले देखो ये 4 बिट किसके लिए है? टाइमर 1 के लिए। देखो मैंने पिछला दिन लिखाया था, ये 4 बिट किसके लिए है? टाइमर R0। टाइमर 0 के लिए। तो टाइमर 1 तो इधर बोला ही नहीं, टाइमर 1 0 बोला है, तो ये चारों का कोई फंक्शंस नहीं है। यस सर। तो ये चारों जो, इसका नाम क्या है? गेट C/T बार M1 M0, राइट। चारों का कोई फंक्शंस नहीं है, इसलिए 0 बिठा दिया, कोई देखना नहीं है, ठीक है। यस सर। अभी टाइमर 0 बोला है, टाइमर 0 गेट पिन नॉट सेट बाय द आस्क, सेट बाय द TR1, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, राइट। C/T बार, C/T बार इज नथिंग बट ए, क्या होना चाहिए सर? हाँ, ऑन होना चाहिए टाइमर। 0 है, देखो इधर। हाँ, उधर 0 है सर। इधर 0 है, क्यों? इसके कोई फंक्शंस नहीं है। यस सर। मगर ये C/T बार, ये भी गेट है, ये भी C/T बार है, ये भी M1 है, ये भी M0 है, एक ही तो है इधर का इधर। हाँ सर। तो C/T बार मतलब क्या है? काउंटर और टाइमर, मतलब मैं टाइमर काम 0 होने से, हाँ, 0 होने से टाइमर काम करेगा। हाँ, तो हमें टाइमर का काम कराना है, तो इधर 0 कर देना है। अब बाहर का क्लॉक पल्स काउंट नहीं करेंगे डिले के लिए, इंटरनल क्लॉक पल्स करेगा, तो हम इधर में 0 कर दिया, राइट। नेक्स्ट कौन सा मोड? 16 बिट टाइमर मोड, मतलब मोड 1, मतलब 01। 01। So what are the value in hexadecimal? It will be 0, it will be 1. So I am given 01 over here. Move tmod comma has 01. Is it clear or not? Yes sir. यस सर। तो एक कौन सा मोड है? 16 बिट, किधर से किधर काउंट कर सकता है? 00 से मतलब बोलो, हो गया बात। 000 से FF। यस सर। मगर ये बहुत बड़ा डिले, इससे हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा स्क्वायर वेव बनेगा, राइट। यस सर। हमको छोटा करना है डिले, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो इनिशियल कुछ वैल्यू देना पड़ेगा सर। इनिशियल वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना डिले छोटा होगा, उतना इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है वो घटेगा। यस सर। इसका जो विड्थ है वो घटेगा, इसका जो विड्थ है वो घटेगा, राइट। यस सर। तो इसमें हम लोग इधर दिया है FF F2। तो ये FF से कितना दूर तक काउंट करेगा? FF। इसके बाद क्या होगा? उसका 0 हो जाएगा फिर, मतलब इनिशियल या फिर 0 हो सकता ना, है। इनिशियल वैल्यू कभी नहीं आएगा, इनिशियल आता है सिर्फ मोड 2 में। अच्छा।
मतलब ऑटो रिलोड मोड में 0 Okay, 0 sir. में 0 0 0 0 हो जाएगा। इस टाइम में TF bit will be set at 1. TF bit will be set at 1, right? Yes, sir. तो देखो कैसे होगा। इनिशियल वैल्यू मतलब ये टाइमर 0 को लेकर काम कर रहे हैं। तो टाइमर 0 you know have a two different registers. One is a TH0, another is TL0. One is TH0, another is TL0. One Yes, is TH0, another is TL0. So TH0 and TL0 में क्या होगा सर? Just see, TH0 is nothing but a TH0 will be FF and TL0 is F2. TH0 में मैंने स्टोर किया FF and TL0 में स्टोर किया F2. इनिशियल वैल्यू स्टोर किया मैंने, राइट? yes, दोबारा जब काउंट करना है, दोबारा हमको इनिशियल वैल्यू स्टोर करना है, नहीं तो 0 0 से काउंट करेगा, याद रखना। yes, sir. अभी CPLP 1.5 मतलब 1.5 जो पिन है उसको हम टगल किया, 0 से 1 किया, 1 से 0 किया, कुछ भी किया, Yes, sir. मतलब टगल किया, राइट? Yes, sir. एक और डिले इधर से जाम किया, एक और डिले किधर जाम करेगा, इधर आ जाएगा। Yes, sir. एक और डिले मतलब इधर से इधर जाम करेगा। नेक्स्ट रिटर्न मतलब किधर से किधर जाम करेगा, इधर से रिटर्न में रिटर्न इस जंप हेयर में जाम करेगा, yes. राइट? Yes. मतलब हम पेन से दिखाएंगे तो इधर से जाम करेगा इस लाइन में, Yes. ठीक है, और इधर से जाम करेगा हेयर में। इधर में। ओके, क्लियर टू यू? अभी देखो इधर क्या कर रहा है, set b tr0, set b tr0. What are the functions of set b tr0? Set b tr0 is nothing but, sir, you know, corresponding timer 0. tr0 is for timer 0. Timer 0 will be set. Timer 0 will be set. Next, JNB TF0 again. JNB TF0 again. What will be happen, sir? JNB TF0 again. जंप करना है, नहीं 0 नहीं होने पर पहले ये सेट भी, अभी देखो इसके वैल्यू दे दिया था, इसके Yes, sir. अंदर वैल्यू स्टोर हो गया था, इनिशियल वैल्यू स्टोर हो गया, मतलब टाइमर अभी तक रन शुरू नहीं किया। क्यों नहीं रन शुरू किया? हमारा कॉपी में देखो, ये जो गेट पिन है, ये गेट पिन 1 नहीं होगा तब तक ये टाइमर रन शुरू नहीं करेगा। अच्छा, ये गेट पिन नहीं 1 होगा तो तब तक रन नहीं शुरू करेगा। ये गेट पिन कब 1 होगा? इट विल बी सेट बाय द TR1। TR1 को हम सेट करने से इसको 1 कर देगा गेट पिन को। तो मैंने वही किया, देखो मैंने वही किया, जस्ट सी इन द स्लाइड, सेट बी TR0। सेट बी TR0 मतलब और उसमें गेट वाले में 1 देंगे तो ऑन हो जाएगा वो TR0। गेट वाले में 1 नहीं देंगे, TR0 को हम सेट करेंगे और गेट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ओके सर। सेट बी TR0 करेंगे तो गेट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर नेक्स्ट क्या करना है, देखो again JNB TF0 again. What are the functions? Again JNB TF0 again. लूप चल रहा है और अगेन में ही तुरंत मतलब जाना है सर। बोलो सर, ये सेट नहीं होगा। एक बार अगेन JNB TF0 अगेन। TF0 का फंक्शंस क्या है? इसमें क्या होगा, ये काउंटिंग जब तक चलेगा तब तक TF0 will be 0। जब काउंटिंग चलेगा तब तक TF0 will be 0। जब काउंटिंग is over then TF0 will be 1। Is it clear?
जब ये FF F2 से FF तक काउंट करेगा, TF फ्लैग सेट नहीं होगा। TF फ्लैग Yes, सेट होगा कब? जब FF से 0 होगा तब, मतलब जब काउंटिंग ओवर हो जाएगा तब। इज इट क्लियर? yes sir. तो देखो मैंने क्या किया, JNB जंप एट नॉट बीट, जब तक TF0 इज 0 है तब तक इसी लाइन में घूमते रहेगा, जब तक TF0 इज 0 है तब तक इसी लाइन में घूमते रहेगा। Yes sir. JNB TF0 अगेन, देखो इसी लाइन में घूमते रहेगा जब तक TF0 इज इक्वल टू 0, राइट? हाँ सर। जब TF0 1 होगा मतलब क्या हुआ, काउंटिंग खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया सर। तो A00 से काउंटिंग करना नहीं है, सेकेंड टाइम, ये तो स्क्वायर है अपना, यस सर, इस क्योंकि पर ऊपर में जितना रहेगा नीचे में भी तो उतना ही रहेगा। ये हाँ यार सर। ये तो एक रहना चाहिए, तो 0 से काउंटिंग नहीं करेगा, किधर से काउंट करेगा फिर? स्टार्टिंग जहाँ से है मतलब। FF2 से काउंट करना है, यस सर। इसीलिए मैंने काउंटिंग को बंद कर दिया CLR TR0। ये जो गेट पिन को जो 1 किया था, गेट पिन को जो 1 किया था, कॉपी में देखो, जो गेट पिन को जो 1 किया था इसको मैंने फिर से 0 करवा दिया यस सर। CLR TR0 करने से। तो यस टाइमर विल बी स्टॉप फॉर काउंटिंग द क्लॉक पल्सेस, राइट? सर। नेक्स्ट, ये तो सेट हो गया था, इसको सेट करता है हार्डवेयर बट क्लियर करता है सॉफ्टवेयर। इसको मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया, मतलब इसको 1 हो गया था उसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि दोबारा हमको लगेगा तब, नहीं तो चेक नहीं कर पाएगा। तो अभी हम इसको इधर से जब काउंटिंग खत्म हो गया था ऑटोमेटिकली 1 हो गया था, इसको मैंने 0 कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट रिटर्न किया, इधर से जाकर इधर रिटर्न किया, फिर इधर से जाम करके इस जंप फेयर, फिर इधर आया, फिर इनिशियल वैल्यू स्टोर किया, फिर इसको टॉगल किया, फिर इधर से जाम करके इधर, फिर कंट्रोल टाइमर को रन कराया, फिर वेट किया FF2 से FF जब खत्म हो गया, फिर ये प्रोसीड्यूर चलता रहा, इसी से स्क्वायर वेव जनरेट होता गया। ये देखो, ये तो कुछ भी हम वैल्यू डाल दिया FF2, इसके बाद हमारा प्रोग्राम आएगा जो तुमको 2 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव चाहिए। 2 किलोहर्ट्ज मतलब व्हाट डू मीन बाय 2 किलोहर्ट्ज? You know this is a square wave, so what is a T? T is nothing but that's one full clock pulse, it is a T, right? See my copy, if it is a square wave, so it is a total T. Yes sir. So total T, F is given 2 kilohertz, so what will be the T? 0.5 millisecond. So it is nothing but a 1/2. Yes sir. 1/2 kilohertz, it will be millisecond. Yes sir. Whatever it is. So in this way, we can generate the square wave what is our requirement according to controlling our delay. We will be coming all those programs, but this is the first program, so I am explaining you. Okay. Yes sir. Next. But the question is how to calculate. It's a very, very important. How to calculate the the clock pulse. There is a formula is there, and this formula will be I explain you now. I'm explaining from mode 1. Explaining from mode 1, right? yes. तो मोड 1 से हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, देखो कैसे हो रहा है. इट इज वेरी फनी. Say I'm starting from ABCD. How much it will be go? Next it will be AB, C, E. Next AB, C, F, up to AB, FF. Am I right? काउंटिंग करेगा. इनिशियल वैल्यू दिया ABCD, ABCD से कितना दूर जाएगा? FF, FF. Yes sir.
तो एबीसीडी से मैंने देखो पहले क्या किया, एबीसीडी, एबीसी, एबीसीएफ, एबीएफएफ। यस इसके सर। बाद क्या होगा, एसी 00 डॉट 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 एसीएफएफ, काउंटिंग करते जा रहे हैं। यस सर। एडी, सॉरी, एडी 00 डॉट 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 एडीएफएफ अप Yes. टू एफएफएफएफ, राइट? यस। ऐसा काउंट होगा ना? हाँ सर। हम तुमको तो डिटेल्स में अभी डिवाइड करके बोल रहे हैं, मगर काउंटिंग ऐसा ही होगा। इसके बारे में पहले छोड़ दो, ये वाला हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? जब पहले बोलो, ये जब डेटा दे रहा है इनिशियल वैल्यू, ये किसके अंदर दे रहा है एंड ए किसके अंदर दे रहा है? ये प्रोग्राम में एबीसीडी के जगह में इधर क्या दिया हुआ है? हाँ सर। एबीसीडी के जगह में इधर क्या दिया हुआ है? इनिशियल वैल्यू। इसमें सर F2 जैसे FF दिया, FF तो दिया हुआ है, हायर वाला के लिए दिया हुआ है, मतलब क्या दिया FF हुआ के है? लिए इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है? इनिशियल सर एफएफ बोलो, FF2 सर। एफएफ। तो एफएफ किसके अंदर दिया है सर? हायर वाले में TH। हायर वाले में, TH 0 में। मैंने Yes. बोल सकते हैं THX में। यस सर। F2 किसके अंदर दिया है सर? लोअर। मतलब CD किस में दिया हुआ है सर? TLX में। यस सर। THX में दिया हुआ है हायर, that is I am saying that AV will be given in THX and CD in given in TLX. TLX क्यों? हम TL0 and TL1 को एक साथ बोल रहा हूँ। THX क्यों सर? TH0 and TH1 को एक साथ बोल रहा हूँ, राइट? यस सर। सर 2 to 5 count, how much count? 2 से 5 काउंट करना है, कितना काउंट करेंगे? 3 सर। कोई फॉर्मूला बताओगे? जहाँ रहेगा वहां से मतलब आगे तक काउंट करेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला Anyone? सर n = 5। हैं? देखो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, 5 - 2 + 1। टू से 5 काउंट, 5 - 2 + 1 बोल सकते हैं कि नहीं? मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू +1। तो उससे तो एक ज्यादा ना हो जा रहा है सर, हैं? एक ज्यादा हो जा रहा है। कैसे ज्यादा हो रहा है सर? 5 - 2 3 हुआ और फिर +1 करेंगे तो 4 हो जा रहा है सर। 2 से 5 काउंट मतलब 2 को भी काउंट करना है, 5 को भी काउंट करना है। कितना काउंट होता है देखो? और तब सर 4 हो जाएगा। तो 4 ही तो होगा। 2 से 5 काउंट करना मतलब पूरा काउंट करना है। यस। 0 से 10 काउंट मतलब 11 काउंट होता है। यस। तो बोलो, कोई सोच के बताओ, अभी तुम्हारा टास्क, ये वाला जो हम अभी कॉपी में देखो, ये वाला जो मैंने मार्किंग किया है, इसमें कितना काउंट होगा? AC 00 to ACFF। तो उसमें हो जाएगा सर, फॉर्मूला से बताओ। 100 सर। हाँ? हेक्साडेसिमल में 100 है। हाँ। FF + 1 FF -1, अच्छा -1 लास्ट में था। FF फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सर कैसे था? 5 - 2 + 1 था ना। हाँ, तो इधर क्या होगा बोलो? 5 के जगह में FF -00, FF -00 उसके बाद फिर +1। हाँ, FF -00 + 1। हाँ या ना में आंसर दो। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? Yes, sir. FF -00 + 1। Everyone is understood?
Yes, sir. एफएफ मतलब क्या है सर? 255। मैं पिछला दिन तो बताया था। यस सर 256 और एक चलो जुड़े कितना हो गया? 256 256। Yes. 256 काउंट विल बी देयर। यस सर तो इधर कितना काउंट होगा सर? 256 हाँ 80 to 80 FF 256 again. Is it clear or not? यस सर तो अभी बोलो इधर से इधर कितना काउंट होगा? ये जो पोर्शंस है, ये जो पोर्शंस है, टोटल कितना काउंट होगा बोलो? हम एक लिखते हैं, तुम लोग देखो हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। इसको क्या है? ये क्या है? एफएफ Yes, है sir. कि नहीं? Yes, sir. ये शुरू किधर से हुआ था? AC. एसी से। सो एफएफ माइनस एसी प्लस 1, एफएफ माइनस एसी प्लस 1 इंटू 256। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सर एक बार फिर से बताइए ना. देखो एक किधर जाएगा खत्म लास्ट? किधर लास्ट जाएगा खत्म? FF पे. एफएफ पे जाएगा। Yes, sir. एफएफ पे जाएगा। किधर से आ रहा है? एसी। देखो Yes, sir. एडी हो रहा है 256 काउंट, एडी से एई होगा 256 काउंट। तो ये एसी एक एक बढ़ेगा, हर एक बार के लिए 256 करके काउंट होगा। Yes, sir. एक एक एसी बढ़ेगा, एडी होगा, एडी से एई होगा, एई से एफ होगा, हर एक के लिए 256 करके काउंट होगा। Yes, sir. तो मैंने क्या किया? एफएफ माइनस एसी, क्योंकि एसी से काउंट कर रहा हूं, एफएफ तक जाएगा। तो 2 से 5 के हिसाब से 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1, हर एक बार के लिए कितना करके 256 करके, तो इंटू 256 कर दिया। तो इधर से इधर पूरा मैंने काउंटिंग कर लिया। फिर से बोलूं? फिर से बोलूं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर समझ गए सर, वो उस तरह से हर बार बढ़ रहा है ना उसमें, जैसे एसी हो रहा है। देखो एसी एक बढ़ेगा तो 256 काउंट होगा, एडी एक बढ़ेगा तो 256 काउंट होगा, एडी एक बढ़ेगा तो फिर से 256 काउंट होगा, हर एक ये बढ़ते जाएगा, एक 256 करके काउंट होगा। तो मैंने क्या किया? एफएफ माइनस एसी प्लस 1 है तो फॉर्मूला बिठाया, हर एक के लिए 256 करके काउंट होगा, इसलिए 256। क्योंकि इधर से एक एक बढ़ेगा तो 256 करके काउंट नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. हम और डिटेल्स दिखा सकते थे। एई 002 टू एई एफएफ कितना काउंट होगा? 256। तो हर एक के लिए ना 256 करके काउंट होगा। Yes, sir. समझ गए. तो एफएफ मतलब क्या है? 255 सर। प्लस 1 मतलब 256। वेरी गुड। 256 राइट। 54 आ रहा है सर टोटल। माइनस 56 माइनस एसी। एसी मतलब क्या है सर? ईडी प्लस 1, सॉरी एबी प्लस 1। शुरुआत किधर से? एबी से, उसके साथ रिलेशन करेंगे एसी, तो किसका कितना होगा? एबी प्लस 1। Yes, sir. मैंने एसी को ये करके लिख रहा है एबी प्लस 1। लिख सकता है कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। एसी को मैंने से डिवाइड किया, अब 255 ये है 255,
plus 1, it is 256. Is it clear? Yes sir. 256 minus AB मतलब क्या है सर? AB मतलब THX. AB मतलब THX. तो हम लिखेंगे THX plus 1 into 256. ओके? Yes sir. हो जाएगा? ये हाँ। कितना दूर तक काउंट बोला? इधर से लेकर इधर तक. हो गया? Yes sir. हो गया? It's clear or not? Clear? इधर Yes, से sir. इधर काउंट A हो गया. अभी कौन सा वाला बाकी है? ABCD से लेकर ABFF तक. अब तुम बोलो इधर से इधर कितना काउंट होगा? देखो AB कांस्टेंट, AB चेंज नहीं हो रहा है, इसको लेकर कोई फायदा नहीं है. अभी CD और FF को लेकर सोचो. हाँ सर, FF minus CD plus 1. वाओ, FF minus CD plus 1 यही होगा? Yes sir. होगा कि नहीं? सबको क्लियर? Yes, sir. तो FF plus 1 मतलब क्या है? 256 सर. 6. CD मतलब क्या है सर? TLX. Yes. माइनस TLX. ओके सर. तो मैंने इधर प्लस इसके साथ जोड़ दे रहे हैं. बहुत तेज तूफान आ गया इधर बाहर में. ओह. पता नहीं इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत तेज चल रहा है. अच्छा. खिड़की लग रहा है खोल के चला जाएगा. हम सोच रहे थे बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा, ठंडा गर्म मौसम हो गया. इधर में कैलकाटा में आज ये है ना, अम्पन आ रहा है ना, Yes, sir. बहुत तेज है ये. अभी तक इतना तेज आया नहीं आया हवा. हाँ. बहुत मतलब ये होगा, प्रॉब्लम होगा आदमी का, बहुत लॉस भी होगा. समझ गया पूरा? यस सर. इतना मशीन साइकिल लगेगा. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम के हिसाब से निकलेंगे तो टोटल इनटू कितना होता है हर एक मशीन साइकिल के लिए? कितना डिस्टेंट? एक के लिए 12. 12 इंटू 12 Yes, sir. बाय FOSC, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. 12.0 ना 12 नहीं, 11 1. हाँ सर, 11.0592. यस सर. ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्मूला. और भी एक फॉर्मूला था. कैसे? FFFF इधर से काउंट शुरू किया था सर, ABCD से. इधर किया था सर FFFF. यस सर. तो मैंने ये भी बोल सकता था FFFF माइनस ABCD प्लस 1. यस सर. FFFF माइनस ABCD प्लस 1. हाँ वो सर. भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है. FFFF प्लस 1 को तुम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 35565 आएगा. 35565. तो 35565 माइनस ABCD को जो डेसिमल में होगा उसको कर दो तो भी निकल जाएगा. तो तीनों फॉर्मूला है. चलो देखते हैं फॉर्मूला. ये है मोड 1 के लिए. मतलब सर एक बार में कर सकते हैं सर, एक बार में, जैसे एक बार में मतलब हम कर सकते हैं इस तरह से FFFF माइनस ABCD प्लस 1. ये भी कर सकते हो, मगर इसमें करने से थोड़ा प्रॉब्लम है. उतना हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना उतना आसान नहीं है. देखो FFFF माइनस ABCD प्लस 1 माइक्रो सेकेंड क्यों किया? इधर सोच लिया है 12 मेगाहर्ट्ज का है, तो 12 कैंसिल हो जा रहा है. मतलब ऊपर में भी 12 इंटू 12 बाई नीचे में भी 12, तो 1 माइक्रो सेकेंड हो जा रहा है. ठीक है. और इसको डेसिमल में किया तो 65536 माइनस ABCD को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये ऐसा आएगा. ये 65536 किधर से आया? FFFF प्लस 1 करने से 65536 आएगा. और ये जो फॉर्मूला अभी हम बनाया, ये देखो यही फॉर्मूला है.
हाँ। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ सर। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए है, बट हमको और अभी एक चीज करके देना है तुम लोगों को। वो है मोड 1 का फॉर्मूला क्या होगा। मोड 0 का, मोड 1 का तो हम कर दिया। उसका सर मोड 0 का 13 बिट तक ही जा रहा है। हाँ? तो जैसे वो 16 बिट तक जा रहा था, तो इसलिए FF करके हम लोग ले रहे थे। समझ में नहीं आया सर मोड 1 वाला जैसे कि 16 बिट था ना। ना? हाँ अभी ये 13 बिट है। हाँ सर, तो वो 13 बिट तक मतलब ऑन रखेंगे। ऑन रखेंगे बोलने से नहीं होगा, कैसे होगा बोलो। उसका सर जैसे कि हर एक बार एक इनिशियल वैल्यू तुमको सोचना पड़ेगा। एक इनिशियल वैल्यू सोच लो पहले। पुराना वाला ले सकता है? सर कितना दूर तक ये काउंट करता है? 0 1 1 FFF सर। हट, पिछला दिन बताया था 13 कितना दूर तक काउंट कर सकता है ये? 0 0 0 0 से बोलो 1 F F 0 0 0 0 से FF 1F। देखो मैंने कॉपी में लिखा, हम उल्टा बोल दिए हैं सर। ठीक है। यस सर। अभी इसका इनिशियल वैल्यू क्या ले सकता है? ABCD ले सकता है? हाँ सर। इसका कितना ले सकता है? ABCD ले सकता है इनिशियल वैल्यू? हाँ ले सकते हैं, हाँ? ले सकते हैं सर। एकदम नहीं ले सकता है। ये भी तो FF के अंदर आ रहा है, लेकिन उसमें वन FCD से नीचे और 4 12 नहीं हो पा रहा है सर। नहीं घुस ABCD नहीं ले सकता है, AB0D ले सकता है। याद रखना AB0D ले सकते हैं। कभी भी ये वैल्यू 1 से नीचे 0 ये वैल्यू 1F से बड़ा नहीं हो सकता है, 1। सर यस सर। क्योंकि इसके लिए है, ये है TLX। यस सर। ये है, ये क्या है बोलो? THX। THX। ये है THX, ये है TLX। THX के लिए 8 बिट है, देखो मैंने पिछला दिन लिखाया था। मगर TLX के लिए क्या, कितना बिट है? 5 है। 5 बिट है। तो ये 1D से कभी बड़ा, 1F से कभी बड़ा होगा ही नहीं। नहीं हो सकता है सर। यस यस। तो AB0D से लेकर नेक्स्ट होगा AB0E, नेक्स्ट होगा AB0F, ऐसे Yes, करके sir. जाएगा AB1F, Yes, sir. AB1F। उसके बाद हो जाएगा AC00, उसके बाद हो जाएगा AC1F, नेक्स्ट AD00, नेक्स्ट AD1F। ओके, नेक्स्ट सर ऐसे करके अप टू FF तक, सॉरी 1F। FF 1F तक जाएगा। यस सर। ये कभी 1F से बड़ा नहीं होगा। यस सर। अभी पिछला बार जैसा, इसके बारे में भूल जाओ। ये जो मैंने दिखाया, ये वाला पोर्शन AB0D से लेकर AB1F तक भूल जाओ, बाद में देखा जाएगा।
अभी नीचे वाला के लिए हम सोचते हैं AC 00 से लेकर AC FF1F। तो पहले बोलो AC 00 से लेकर AC 1F कितना काउंट होगा? 1F माइनस 00 प्लस 1। हाँ तो कितना? 1F माइनस 00 प्लस 1। यस सर। 1F मतलब कितना? 31। 16 प्लस 15 31। 31 प्लस 1 कितना होता है? कितना होता है? 32 सर। 31 1 32 राइट। तो Yes, इसके sir. लिए भी क्या होगा? इसके लिए भी वही 32 आएगा सर। तो हर एक में 32 काउंट होगा। यस सर। अभी बोलो इधर से इधर काउंट मतलब कितना काउंट होगा? FF माइनस AC प्लस 1 FF माइनस AC प्लस 1 इंटू 32 इंटू 32। वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और FF प्लस 1 मतलब 56 256 और माइनस AC को हम लिखेंगे AB प्लस 1 यस सर इंटू 32 राइट। और उसको T नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 256 माइनस THX प्लस 1 THX प्लस 1 इंटू 32 इंटू 32 राइट। अभी बोलो इस साइड वाला कितना है? AB 0D से लेकर AB 1F। AB तो चेंज नहीं हो रहा है, 0D से 1F यस सर। कितना होगा? तो 1F माइनस 0D प्लस 1 तो कितना होगा? तो 32 प्लस अच्छा माइनस 0 माइनस TLX माइनस 0D मतलब TLX। यस यस सर। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो इधर 32 माइनस TLX। ओके यस इधर सर। में भी लिख देंगे 32 माइनस TLX। इधर में भी लिख देंगे 32 माइनस TLX। यस सर। ओके यस सर। इसको टाइम निकालना है इंटू 12 बाई FOSC। यस सर एकदम। ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखो ऑटो रिलोड मोड THX will be store the initial value। THX will be store the initial value और TLX will be the count। जब भी इनिशियल वैल्यू फुल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो यू नो ये किधर से किधर काउंट करेगा? 0 to FF। ओके सर। हाँ 8 फिर से सर 8 बिट तो 0 to FF काउंट करेगा राइट। सर कहाँ बोल रहे हैं हम देख नहीं पाए हम। स्लाइड में बोल रहे हैं यस सर। मोड 2 में यू नो मोड 2 में हम फिर से बोल रहा हूं मोड 2 में तुम्हारा क्या है? ऑटो रिलोड है सर इसमें। ऑटो रिलोड मोड है। कितना बिट का मोड है? ऑटो रिलोड सर इसमें 8 बिट का है सर। 8 बिट का है। यस सर। तो तुम्हारा ये जो मोड है यू नो जो मोड है तुम्हारा 8 बिट का जो मोड है वो कितना दूर तक काउंट कर सकता है? 00 से लेकर FF तक। FF तक करेगा सर। 8 बिट तो 00 से लेकर FF तक। यस सर। तो अभी हिसाब से देखा जाए तो AB हम इनिशियल वैल्यू देंगे तो AB से कितना दूर काउंट करेगा? FF। हाँ तो मैंने क्या बोलूंगा? फॉर्मूला का हिसाब से बोलूंगा तो FF माइनस AB plus 1 यस सर।
तो FF प्लस 1 मतलब क्या है? 256 256 माइनस TLX। TLX TLX लिखो, THX लिखो, कुछ भी लिखो, वो तो एक ही है ना, क्योंकि THX में तुम डालोगे ऑटोमेटिकली TLX में वो चला जाएगा। ओ तो TLX into 12 by FOSC, राइट? ये हो जाएगा तुम्हारा इधर का। क्लियर टू यू? यस सर एकदम। तो ये हो गया तुम्हारा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, ये देखो, जब ये you know it is overflow means after FF when it will be overflow, so timer flag will be set after FF, and in that particular time it will be connected with that. THX will be stored the initial value, so again initial value stored into the TLX, so it will be always starting from the initial value, no need to store again initial value. And it is a split timer mode, there is a mode 3 here. TL0 is nothing for timer 0, that is a TF0, and TH0 is for timer 1. It says called split timer mode, just a 8-bit timer mode, nothing else. कैसे सर इसमें मतलब ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो उधर 1 मिलेगा, फिर इधर से वापस फीडबैक के रूप में आएगा? मतलब 1 मिलेगा जैसे एकदम काउंटिंग खत्म हो जाएगा उस समय? जब FF हो जाएगा उसके बाद TF फ्लैग सेट होगा ना। हाँ सर एकदम। FF के बाद 0 होना चाहिए था, मगर जब TF फ्लैग सेट होगा ये क्या करेगा, इधर से जाकर इधर वो ये 1 हो जाएगा, ये स्विच को ऑन कर देगा, मतलब इन दोनों के साथ कनेक्शन जोड़ देगा। अच्छा। TF में जो था, TH में जो था, वो सीधा चला जाएगा TLX में। अच्छा क्लियर? यस सर। यही इसका फंक्शन। देखो, इट इज अ मोड 2 प्रोग्रामिंग, it's a mode 2 programming. Okay, I leave it for today. I will discuss the mode 2 programming tomorrow. Tomorrow will be the same time. Okay, now बाहर में बहुत तेज हवा चल रहा है, पता नहीं है किधर से क्या पानी घुस रहा है घर में। ओके सर। I will be discussed tomorrow. ओके सर। Okay. Okay. We are leaving today. Tomorrow will be the same time at 3 o'clock. Okay sir. Anything else you want to know? नहीं सर अभी नहीं, कंफ्यूजन होगा फिर पूछेंगे कल। ठीक, कल फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है? यस।